Recording in progress. So derive an expression for electric field due to uniformly charged conductor of any shape. तो ये डेरिवेशन हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज जीरो. सो व्हेन आई एम सेइंग एनी शेप, तो ये ऐसा आपने ले लिया, ये एनी शेप हो गया. ठीक है, दिस इज एनी शेप. फाइन. सो ये इसके ऊपर ना आपने क्या किया है कि आप ये कंसिडर कर लेते हो कि इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. एनी शेप है ना, कोई कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हो, कोई भी डायग्राम होगा तो वो डायग्राम इस पे वर्क करेगा. ओनली वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यू विल अज्यूम इट एज व्हाट, इट्स एरिया इज कैपिटल ए. तो आप पहले ना ये अजम्पशन आपका पहले होगा, लेट कैपिटल ए बी द एरिया, बी द एरिया ऑफ कंडक्टर ऑफ एनी शेप. आप यहाँ पे ना स्क्वायर सर्कल भी ले सकते हो, एरिया ऑफ कंडक्टर ऑफ एनी शेप. तो एनी शेप में ना इफ आई डोंट गो फॉर एनी डेफिनिट और एनी डिफाइंड स्ट्रक्चर, तो ये उस टाइम पे काम करेगा. ऑफ एनी शेप, कंडक्टर ऑफ एनी शेप. फाइन. लेट ए बी द एरिया ऑफ कंडक्टर ऑफ एनी शेप. फाइन. ये कंडीशन है. सो जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा, तो डीए का इंटीग्रेशन विल बी ए इन दिस केस. दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस. सो अभी अगेन सेम पॉइंट वी नीड टू मेंशन दैट वी हैव टू टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट. So like in this case now I'm taking small area element over here. Suppose I have taken small area element over here. ये थोड़ा सा आपका वेरिएशन है. There is a little different pattern we are going to get. This is the area about which we are talking. तो आपने ये एरिया लिया. This area का ना you will take two parts. Means you are taking, अच्छा this area का area vector क्या होगा? Area vector will be outside. So this is what area vector dA vector. Correct? Where is the electric field? So it is on the surface itself. ना body खुद ही body का ये है impact है. So electric field will be like, this is the surface. From the surface where the electric field will pass, it will be like this. So this is what E vector. And what's the angle between them? Angle between them is what? 0. Okay. And again, same story of the previous one. Electric flux through small area element. Electric flux through small area element. Electric flux through small area element dA. फाइन. अच्छा ये ना हमारे सिलेबस में, मतलब if you'll see in the textbook, this derivation is not given, but this is very important with you can say now board exam point of view, because they have asked this question before. So accordingly we have to this is important with respect to board point of view, but this derivation is not given in the textbook. That point should be very clear to us. So electric flux through small area element. So when I'm taking electric field is what? E vector. Small area is what? dA vector. And what is the flux? Flux is what? d phi. Fine. Now according if we'll extend this one, what do we get? We get d phi is equal to what? It's what? E dA and cos theta. Fine. And then we'll write where. So again we'll discuss in both pattern, one which is known to us and second when we don't know anything in that case. So when we don't know anything, we'll take cos theta 1 and angle between them is what? 0. And a cos theta is 1. Then for that cos theta to be 1, theta has to be 0. And you can see the diagram also. Theta is 0. So I can go in reverse also. Theta is 0. So cos theta will be 1. And after putting value for cos theta in what? This equation. And what do we get? Therefore d phi is equal to, we are getting it as what? E dA. This is what? Equation number 1 to us. This is equation number 1. ठीक है. वो बीच में पैच आएगा तो मुझे बता देना, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट कि कभी आपका ना ये बीच में आ जा रहा है ये. अच्छा ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ. ठीक है. सो d phi is equal to E dA. Now according to this, what do we need to do? We have to get total flux. To get total flux, what can we do? We have to integrate. So to get total flux, integrate 1. Integrate equation number 1. So when we will integrate, d phi will be integration of d phi, then integration of what? E into dA. Fine. What is constant in this case? E will be constant. Okay. E will be constant. Correct.
So अभी इसके लिए हम ना क्या करते हैं, ये पॉइंट को ले लेते हैं यहाँ पे, लाइक दिस, ऐसा थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ. Now what will be constant? E will be constant. So d phi का integration is what? D phi integration is phi. E is constant, so we'll take it outside. So integration of what? dA. This is what? Equation number 2. Now we'll reach to the point which we had already discussed, that we have to get value for integration of dA. So you write where. अगर sphere होता है तो integration of dA क्या होता है? Sphere के लिए integration of dA होता है 4 pi r square. When it is a cylinder, it is 2 pi r L. When any shape, it will be what? Capital A. This is what? Equation number 3. Now from, yeah, put 3 in 1. Now we are going to put value of integration dA. From where we are putting from equation number 3. So put equation number 3 in equation number 2. And what do we get finally? We get phi is equal to, this is what? E into what? A. Equation number 4. As I have not written complete statement in this question. Derive an expression for electric field due to uniformly charged conductor of any shape. And the additional point is what? Using Gauss theorem. Using Gauss theorem. So that we are supposed to write. So using Gauss theorem, what is the Gauss theorem? We'll write Gauss theorem now. So according to Gauss theorem, what do we get according to Gauss theorem? So according to Gauss theorem. Gauss theorem or Gauss law. So what is the charge? This charge is what? Q. And what is the imaginary? This one, when you are taking the imaginary Gaussian sphere, you have to take now all around. So that is assumption, because we can't have a specific structure. So we will not be able to draw the Gaussian surface. But we are imagining that any imaginary Gaussian surface is there, and within that we are finding this flux. So flux is equal to what? This charge Q upon what? Epsilon naught. And what? Equation number 5. Sometimes what happens that we do take cylindrical things and all, but that's fine. If you're not taking that, that's also, it's fine. Now we'll relate equation 4th and 5th. We will relate equation 4th and 5th. 4th flux and 5th flux. So from 4th and 5th. So from 4th equation and from 5th equation, what do we get? So electric field E into area A will be equal to what? Q upon epsilon naught. So what's the formula for electric field E? Electric field E is what? Q upon A epsilon naught. तो एक ये formula होगा for any shape. अब इसमें एक कंडीशन होता है, किसी को कोई आइडिया है कि इसमें कोई एक वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं? कोई एक फॉर्मूला दिख रहा है, कोई एक और फॉर्मूला हम फोर्सफुली इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? Anybody feels कि forcefully we can introduce any formula? हाँ बेटा, Q by A. Q by A की जगह पे हम कुछ पुट कर सकते हैं. Q by A की जगह पे हम क्या सिग्मा पुट कर सकते हैं. तो ये E हो गया. Q by A की जगह हम सिग्मा पुट देते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अब आपने एक बार चेक कर लो, ये सरफेस के ऊपर है, तो यू कैन राइट वेयर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी, हाँ, वेयर sigma is equal to Q upon A. So I have replaced Q upon A and I am converting in terms of what? Sigma. I am writing in terms of sigma. So this is the derivation for electric field due to uniformly charged conductor of any shape using Gauss theorem. मैं पहले बता दूं, this question is not given in the textbook. In reference book you may get, but in board exam they have asked about this question. In board exam they have asked about this question. That's why it's very important. ठीक है? Please do make note of this. ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा ना कि थोड़े से फॉर्मुलेस वगैरह जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो मैं रिवाइज करा दूं. ठीक है? ये हमारा सेकेंड लास्ट डेरिवेशन होगा इस चैप्टर का, सेकेंड लास्ट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है? सो क्वेश्चन इज derive an expression for electric field. Derive an expression for electric field. Derive an expression for electric field. Expression for electric field due to uniformly charged. Electric field due to uniformly
uniformly charged, plain sheet, uniformly charged plain sheet. Okay, and as far we know that we have to find out this using Gauss theorem. So using Gauss theorem. Fine. So this is the question. Now plain sheet के लिए ना देखो, plain sheet के लिए you can make any sheet, but थोड़ा सा हम ना stylish बनाएंगे so that it should look good. और plain sheet का भी area हमको लेना बेटा ना, we will take it as this you can say capital A only. क्योंकि प्लेन शीट में कोई भी प्लेन शीट हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, इरेगुलर शेप हो सकता है. तो प्लेन शीट का पहले तो मैं एक जनरल पैटर्न आपको बता देता हूँ, देन विल गो अहेड. सो ये प्लेन शीट पहले मैंने ऐसे बना लिया, ये प्लेन शीट है. ठीक है, अभी प्लेन शीट आपका ना ऐसा ये भी हो सकता है, ये भी प्लेन शीट हो सकता है, मतलब एनी पेपर, पेपर ऑफ एनी शेप. तो जब एनी शेप है तो देन यू विल टेक द एरिया एज कैपिटल ए. सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस प्लेन शीट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड. ये स्टोरी है ना, जैसे अभी प्लेन शीट आपने लिया ना बेटा, प्लेन शीट में इट इज नॉट अबाउट वन साइड. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो कंप्लीट शीट इज पॉजिटिवली चार्ज, इसका इंपैक्ट लेफ्ट में भी होगा. इट विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द राइट आल्सो, इट विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लेफ्ट आल्सो. दिस प्लेन शीट विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन लेफ्ट एंड राइट बोथ. Plane sheet will have electric field right also and will have electric field on left also. So electric field on the right hand side as well as electric field on left hand side. So in this case, you have to take the area vector on the right hand side also, area vector on the left hand side also. That's most important. But when the diagram which I have drawn right now, in that diagram, if I'm taking the small area element, so suppose that I'm taking small area element, what will I do? I'm doing it like this. I'll take a small circular part as like this. So I will select area with respect to this. So I cannot see ना, मैं फ्रंट में तो देख सकता हूँ, बट बिहाइंड में आई कांट सी. व्हाट विल आई डू? मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ना मैं लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ किया, दिस लाइन आई एम ड्रॉइंग. सॉरी एक मिनट, जस्ट वी आर ट्राइंग टू मैनेज. और ये सेम पैटर्न वी विल हैव अदर साइड टू. मतलब मैं वो सिलेंडर को ही हम इमेजिन करके चल रहे हैं कि ये सिलेंडर का ये पार्ट है, और इफ यू वांट टू शो कि इट्स रिलेटेड टू दिस, सो यू कैन मेक डॉटेड लाइन. मींस बिहाइंड से ना इट इज कवरिंग दिस एरिया ओनली. नाउ वी आर टेकिंग द अनदर लाइन because we cannot. I'm just trying to draw cylinder. If I'm not drawing a cylinder on this side also, it's fine. But I'm just trying to show you because there should not be any confusion that we are doing it in different way. We are drawing on both sides, this side also, so that you can understand similar pattern is drawn on behind also. Just to make you understand that similar pattern is drawn on behind also, we are drawing the front part. So it is like this. So this is the actual area, this side, and similar area you'll get on left hand side also like this. Got it? And what's the area vector? Area vector, very simple. You draw perpendicular to this. So we are drawing perpendicular. Now from the center, we are drawing a perpendicular like this. So this is what area vector. This area vector is set now. This is area vector. So this is what dA vector. So you are getting on right hand side also. Similarly, you'll get area vector on left hand side also. You'll get area vector on left hand side also. The left hand side, I'll draw it from over here. So like this. This is the area vector on left hand side also. So area vector, dA vector. Fine. We'll take the electric field. Electric field is away from, electric field is away from the positively charged body. So this plate is positively charged. So away from positively charged body is like this. So let's see it's getting set it or not. ठीक है, ये हुई.
देखो उसके ऊपर ही मैंने ना ग्रीन वाला भी ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, एंड व्हाट्स द एंगल ओवर हियर, थीटा इज व्हाट, 0. And similar pattern we are going to draw on left hand side too. Similar pattern is going, we are going to draw on left hand side too. E vector. So theta is equal to 0. Fine. So अब हमको क्या करना है, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट स्टोरी. अच्छा, बिफोर दैट ना विल टेक ये, let A be the capital area. Let capital A, let capital A be the area of plane sheet. Be the area of plane sheet. Plane sheet. Fine. Now next one, flux through small area element. So flux through small area element dA. Flux through small area element dA. Acha, the point which we are going to find a little difficult or little confusing will be this point, flux through small area element dA. So what is the confusing point? अभी इस केस में बेटा, अभी if you all will see ना, ये आपका E वेक्टर है और ये DA वेक्टर है, करेक्ट. बट प्रॉब्लम इज दैट ना, इट इज ऑन राइट हैंड साइड, करेक्ट. ये सेट आपको राइट साइड में मिलता है, प्लस सिमिलर काइंड्स ऑफ सेट यू आर गोइंग टू गेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो. E वेक्टर डॉट DA वेक्टर ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका हो गया D फाई. अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो D फाई इज इक्वल टू, व्हेन आई एक्सटेंड आई गेट EDA cos. ये पहला टाइम होगा जहां पे हम एंगल का वैल्यू तुरंत पुट कर देंगे. सो ये EDA, ये ना पहले वाला डेरिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, लिटिल बिट डिफरेंट. व्हाट इज द डिफरेंस? Because I know on the right hand side what is the angle between E and DA. Angle between E and DA is 0. And I know what is the angle between E and DA on the left hand side. That is also 0. So cos 0 in both cases. Cos 0 is what? 1. So what do we get? Therefore, we'll get it as D phi is equal to EDA plus what? EDA. Now we'll be back to the same pattern. So therefore, D phi is equal to 2 times of EDA. ठीक है, क्योंकि वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को दो रीजन कवर करके दे रहा है. तो दिस व्हाट इक्वेशन नंबर 1. एंड सेम ओल्ड स्टोरी. एक मिनट ना सब लोग, ये है ना, मैं जरा चेक कर लेता हूँ नोट्स में, बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हाइट वाली लाइन आपको नोट्स में दिखती है या नहीं दिखती है. हाँ, क्योंकि बैकग्राउंड नोट्स में आपको व्हाइट मिलेगा. आई थिंक व्हाइट वाली लाइट ब्लैक हो जाती है क्या, शायद. हाँ, ब्लैक हो जाती है, बराबर बराबर. व्हाइट लाइन विल टर्न इनटू ब्लैक. हाँ चलो ठीक है, नेचर का हेल्प हो रहा है. ठीक है, इंटीग्रेट इक्वेशन नंबर 1. सो अच्छा, इंटीग्रेट क्यों करना है? व्हाई टू इंटीग्रेट? टू गेट टोटल फ्लक्स. To get total flux. So to get total flux, what to do? Integrate. क्या इंटीग्रेट करें बच्चा? Integrate equation number 1. So when you are integrating now, you will integrate D phi. Then you are going to integrate to capital E into DA. Huh? And rule is again very simple. What do we need to do? The constant values will be outside. So D phi integration is phi. What are the constant values? 2E constant value. So 2 will be outside, capital E will be outside. What do we need to do? We have to integrate. Integrate what? Integrate DA. This is equation number 2. Is that clear? Now what is the integration of DA? Where? Integration of DA is what? As we have already imagined or assumed that integration of DA is what? Integration of DA. We have already taken. Integration of DA is what? So A is the area of the plane sheet. So when you integrate like DA kinds of lots of stuff, then you'll get it as A. So this is equation number 3. Now we are going to put put equation number 3 in equation number 2.
and what do we get? So phi is equal to 2 will be there, capital E will be there. But what's the value for d phi? DA, sorry, DA, integration of DA. Integration of DA is what? A. It's what? Equation number 4. Now we are going to relate. We are going to relate equation number 2. एक मिनट, अच्छा सॉरी, हमने क्या करना है, ये हमने फाई का वैल्यू निकाल दिया नॉर्मली, हमको गॉस थ्योरम भी यूज करना है ना, ये पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, व्हाट इज द चार्ज? चार्ज ऑन दिस इज, यू इमेजिन एज क्यू एंड यू इमेजिन अ गॉसियन स्फीयर, एक इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर आपने कंसिडर कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ये मैं यहाँ पे ना जीटी लिख दे रहा हूँ बिकॉज वी हैव अ प्रॉब्लम ऑफ स्पेस। सो फाई इज इक्वल टू, विल गेट इट एज व्हाट? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. This is what? Equation number 5. Now we will take that value. So you will mention that from 4th and 5th. So from 4th and 5th, what do we get? From 4th we are getting 5 and from 5th also we are getting 5. So it's meant that 2 into capital E into A will be equal to Q upon epsilon naught. So finally, what's the value for E? So E is equal to Q upon 2 is there, A is there, and this epsilon naught. So बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना एनी शेप के जैसा ही है. दिस इज वेरी सिमिलर टू एनी शेप. बट व्हाट इज द डिफरेंस? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस फॉर्मूला एंड एनी शेप फॉर्मूला? क्या डिफरेंस है? एनीबॉडी? कोई होनहार बच्चा? हाँ, नाराज हो जाते तुम लोग ना, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. कोई भी बोल दो यार. ए सी, वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड ना, वी टीचर्स आल्सो आर हैविंग वर्कशॉप. अरे रिया बोल देना बेटा. हाँ, मैं ना अभी वो चैट बॉक्स ओपन करने के लिए मेरे को फिर ना वो जाना, वो 2-4 फैक्टर्स ओपन करने पड़ेंगे, which is getting very complicated for me. तो उसका हाफ है इसलिए वो मैं माइक मेरा इतना इतना ही सुनने के लिए तरस रहा हूँ मैं यार. हाँ, कितना फुटेज खा रहे हो तुम लोग. चलो ये ना Q अपॉन A, Q अपॉन A का वैल्यू क्या है बेटा? ये सिग्मा है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ना स्टोरी थोड़ा सा डिफरेंट हो गया. ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. अब तक हमको ना सिग्मा के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे क्या मिलता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलता था. ये पहला फॉर्मूला है जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. क्यों? क्योंकि ना हम स्क्रीन के एक साइड में ही फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन स्टडी एट वन साइड ओनली, वी कैन नॉट स्टडी ऑन बोथ साइड एट अ टाइम. पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये हमारे चैप्टर का सेकेंड लास्ट डेरिवेशन. एक्चुअली लास्ट डेरिवेशन में 2 डेरिवेशन है अनफॉर्चुनेटली, तो ये थर्ड लास्ट डेरिवेशन होगा टेक्निकली इफ वी सी. ठीक है, नहीं, हाँ हाँ, हाफ ऑफ एनी शेप. वेरी गुड रिया. हाँ, शी अंडरस्टूड बेटर वे. हाफ ऑफ एनी शेप. फॉर अदर शेप इट्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ओनली फॉर द प्लेन शीट इट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. अच्छा, जो लेट ज्वाइन किए उनको मैं फिर से बता दूं, ग्रुप में मैंने ना जो लास्ट क्लास का वीडियो था रिकॉर्डेड, वो मैंने यहाँ पे ग्रुप में डाल दिया. अब इसका मतलब ये नहीं है कि यू विल नॉट अटेंड क्लास. ठीक है, वो तो बस ऐसे मैंने मजे के लिए डाल दिया क्योंकि मेरे को यूट्यूब से बहुत पैसे कमाने हैं. ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं अपन. नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है कि हमको ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. जैसे अभी ना मोबाइल बैटरी वगैरह होता है ना, तो कैसे हम ये चार्ज उसमें स्टोर करते हैं, क्या पैटर्न होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. बट बिफोर गोइंग अहेड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पैटर्न कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है ना, तो पैंट वाला फॉर्मेट हमको फॉलो करना है. पैंट P फॉर पॉजिटिव, A फॉर अवे. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमको मिलेगा फील्ड लाइंस अवे, एंड N फॉर नेगेटिव, और उसके लिए फील्ड लाइंस मिलेगा हमको टूवर्ड्स. ठीक है, मैं अभी यहाँ पे हमारे लिए कलर कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव होगा. अच्छा, एक और पॉइंट आप समझ लेना बेटा कि अगर मेरे पास ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट के बीच में ना कोई भी प्लेट आ जाता है. सपोज दैट ना यू इमेजिन दैट देयर इज अनदर प्लेट कमिंग. ऐसा है ना, एक प्लेट यहाँ पे आ गया, एक प्लेट यहाँ पे आ गया, एक प्लेट यहाँ पे आ गया. और क्वेश्चन में ये है कि ना व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव प्लेट. यहाँ पे बताओ क्या डायरेक्शन है, यहाँ पे बताओ क्या डायरेक्शन है, यहाँ पे बताओ क्या डायरेक्शन है. तो ऐसा हमको लग सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट में होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा. बट देयर कैन बी वन क्वेश्चन इन योर माइंड
दैट देयर इज अ प्लेट इन बिटवीन, तो इसका इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होगा क्या? शुड बी इग्नोर? तो इट्स नॉट लाइक दैट. देयर इज एनी ऑब्स्टिकल इन बिटवीन, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस. wherever you are finding the electric field, it will show its own property. पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए फिर लाइंस अवे ही होगा. दो देयर इज अ ऑब्स्टिकल इन बिटवीन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑब्स्टिकल इज नॉट गोइंग टू create any harm. The obstacle is not going to influence the direction of electric field for us. If I have to get electric field over here, so you can say one obstacle, two obstacle, three obstacle. After that also electric field will be on right hand side only. But suppose for same electric field I'm taking on the left, यहाँ पे निकालना है तो ये लेफ्ट हो गया. फिर अगर मान लो मैंने बोला यहाँ पे निकालो, तो भी आपने लेफ्ट में बताया, मैंने बोला यहाँ पे बताओ, तो आप बोलोगे सर ये दो लेफ्ट में है, तो आप समझ लो ना ये लेफ्ट में है. बट नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि ये भी लेफ्ट में है. ठीक है, गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे निकालना है तो भी लेफ्ट में है, यहाँ पे निकालना है तो भी लेफ्ट में. जितनी बार पूछेगा, जहां पे पूछेगा, हमको वहां का डायरेक्शन बताना है. ठीक है, डोंट गेट इरिटेटेड कि ना इतना पता चल गया ना इसका लेफ्ट में, इसका लेफ्ट में, तो उसका क्यों पूछ रहे हैं. हाँ, बट क्वेश्चन ऐसे आते हैं. यू डू गेट क्वेश्चन लाइक दिस where they can ask, where you may feel कि ना there's no sense of finding electric field at that particular point because other two places we have already obtained. ठीक है, is that clear? Any doubt to anybody in this case? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. सो मेरे लिए अभी क्वेश्चन क्या है ना, डिराइव. क्वेश्चन इज आई राइट क्वेश्चन, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, यहाँ पे वेक्टर वगैरह वापस से आएगा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है. सो डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स. आया, एक मिनट, बिटवीन अभी वर्ड नहीं यूज करता हूं मैं, क्योंकि डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स. फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स containing surface charge density, containing surface charge density, containing surface charge density, containing surface charge density. क्या है surface charge density? containing surface charge density minus sigma 1 and plus sigma 2. ये सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है. मतलब माइनस सिग्मा 1 मतलब क्या हो गया ना, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, तो इतना टेंशन नहीं होता. डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स कंटेनिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इन रीजन 1 2 3. रीजन मतलब वो एरिया वाला रीजन. इन रीजन 1, रीजन 2. अभी ये क्या है, रीजन 1 रीजन 2, वो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. एंड रीजन 3. ठीक है, अब इसके बाद ना एक और पॉइंट है, जो अगला क्वेश्चन आएगा ना, एक्चुअली ये भी डेरिवेशन एंड हो सकता है, बट अगले क्वेश्चन में ना ये जो आपने नेगेटिव लिया ना, इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे. ये नेगेटिव को पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, यही क्वेश्चन में वेरिएशन होगा. तो अब मैं क्या करता हूँ, जिसपे प्लस सिग्मा होगा, प्लस सिग्मा वाले पॉइंट को मैं ना एक दूसरे मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा, माइनस को दूसरे मार्कर से. तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल टेक द ग्रीन मार्कर टू रिप्रेजेंट माइनस सिग्मा. ठीक है, हमको पैरेलल प्लेट्स बनाने हैं, तो ये ऐसा. देखो उसका कलर डायरेक्ट चेंज होता है क्या? एक मिनट. हाउ डू वी नो दिस प्लेट इज कंटेनिंग माइनस चार्ज? बिकॉज इसकी डेंसिटी है माइनस सिग्मा 1. I will take another plate which is parallel to this. I will take another plate which is parallel to this. ठीक है, so I will take another plate which is parallel to this. ये ऐसा. ठीक है, ये दो प्लेट्स पैरेलल है. इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा. ठीक है, ये आपका हो गया माइनस सिग्मा 2. अब अगर आपने वो जो रीजन हमने लिया था, रीजन 1 and 2, तो ये आपका रीजन 1 है, मतलब आउटसाइड दी प्लेट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड. रीजन 2 क्या है, इन बिटवीन प्लेट्स on right hand side, in between plates. And third reason is what, outside the plates on right hand side.
सो हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करना है, हम सबका डायरेक्शन लेंगे। तो हमको ना ये जो माइनस है ना, माइनस माइनस सिग्मा वन, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे रीजन वन में भी लेना है, रीजन टू में भी रीजन थ्री में भी लेना है। सिग्मा टू दैट इज सिग्मा टू इज प्लस, सिग्मा टू इज प्लस, ये पॉजिटिव है, सिग्मा टू इज पॉजिटिव एंड सिग्मा वन इज नेगेटिव। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ना दोनों के लिए फाइंड आउट करना है। तो नेगेटिव डेंसिटी के लिए रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रीजन टू में क्या होगा, रीजन थ्री में क्या होगा, आई हैव टू फाइंड आउट फॉर ऑल थ्री। एंड सेकंड के लिए रीजन वन में क्या होगा, रीजन टू में क्या होगा, रीजन थ्री में होगा, वो भी हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, सॉरी देयर वाज अ इशू रिलेटेड टू पावर सप्लाई। हाँ, अब हम लंबा क्लास रख सकते हैं, डोंट वरी। सो अभी हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है शेप, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ये रीजन में लेना है, तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। समझ में आ रहा है क्या, मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ, बाद में फिर कौन सा डायरेक्शन होगा क्या होगा बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना। अच्छा, ग्रीन ड्रॉ करने का मतलब है कि आई वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये माइनस सिग्मा वन का मुझे ये डायरेक्शन इन पॉइंट्स पे लाना है। ठीक है, ठीक है, अब हम ना यहाँ पे मैं ना जो प्लस सिग्मा है उसके लिए भी मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अरेंजमेंट कर देता हूँ। सो दीज लाइन्स आर यूज टू ड्रॉ डायरेक्शन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लेना है, तो वेक्टर फॉर्म में ना पहले बिफोर प्रोसीडिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द यूनिट वेक्टर। तो हम पहले यूनिट वेक्टर डिसाइड कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर हम राइट को लेंगे, मतलब हमने ले लिया, चलो ठीक है, आर कोई यूनिट वेक्टर है, आर कोई यूनिट वेक्टर है। तो जब कोई चीज राइट में होगा तो हम यूनिट वेक्टर को पॉजिटिव लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा उसके लिए यूनिट वेक्टर हम ये नेगेटिव में लेंगे। हमारे हिसाब से राइट इज द राइट डायरेक्शन। हाँ, एम आई राइट? ठीक है, सो राइट साइड इज द पॉजिटिव यूनिट वेक्टर एंड लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव यूनिट वेक्टर। So let's see what is the direction of electric field for the positive negative charge. So sigma 1 negative charge, so negative charge का field lines towards होगा, so it will be towards the plate, ये towards the plate होगा। It's because of negative charge, ये plate 1 है तो मैंने इसको electric field 1 ले लिया, तो electric field 1 is on right hand side। Now when I'll take the second plate is again negative, so negative plate is what, again it is towards, negative plate is again towards, so this is what electric field 1, that is towards. Now, because of negative plates in third region, where is the electric field? That is again on left, right? That is what? E1 vector. So all are approaching towards the plate. And you can see E1 is approaching towards plate. E2 is this E1 again approaching towards plate. Third region, E1 approaching towards plate. Which plate? The green one. Why green one? Green one is negative. Green one is negative. Green one negative minus sigma 1. Now we'll see the red one. The red one, if you are seeing this part. So in this case, it will be away, positive plates away. So E2 is away, E2 vector away. And then for the second one in region 2, third region away, second region also away, but that will be on left hand side. And first region also away, but that will be on left hand side. So E2 vector. So what is the main point? If you see in the region 1, E1 vector, E2 vector opposite. In region 2, E1 vector, E2 vector both are in the same direction. In region 3, E1 vector, E2 vector are in opposite direction. There can be little change also. Sigma 1 can be positive and sigma 2 can be negative. That is also possible, but that will not make any difference. Okay, so everybody please draw these diagrams because these diagrams are very important. If we are having any confusion related to these diagrams, then there will be problem. Okay. Diagram you see. This green one, if you'll see na green, electric field 1, if you are seeing electric field 1, electric field 1, electric field 1 in the region 1 will be on the right hand side because this negative charge sigma 1, because sigma 1 is negatively charged and negatively charged ka, that rule we had na fan for the negative charge towards. So plate is over here for region 1, plate is on right hand side, so arrow will be on right hand side. So E1 is on right hand side like this, E1 is on right hand side like this because it is indicating that it will be towards the plate, negative charge will be towards the body. And region 2, where is the body? Body is on left,
So that's why the arrow in the region 2 will be on left. And for region 3, again, negative plate will be on left hand side. So even on right hand side, even left hand side, even left hand side. Why? Because this even, all are indicating towards left hand side. That's even for region 2, even for this, even for region 3. These two will be on left hand side. Why? Because towards the plate. But in region 1 will be right hand side because it has to indicate towards the plate. Negative will be towards the plate or towards the body for the negative charge. But when you are taking positive, positive will be away. So this is positive. So away. How will it be away? When arrow is away, means it has to go on right. For this place, it has to go on left. This place, it has to go on left. Then only it will be away. ठीक है. So अब हम ना इसको one by one will discuss. ठीक है. 1 minute. ये अभी किसने ज्वाइन किया? Someone joined just now. ठीक है, चलेगा. I think someone ने ही ज्वाइन किया. Yes, sir. है ना? हाँ. देखा, someone joined just now. चले, अभी ये क्या है पॉइंट हम ले रहे हैं, तो इसमें हमको ना इलेक्ट्रिक लेना है रीजन 1 में. तो अब मैं ना यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ रीजन 1. ठीक है, रीजन 1. ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ना कई बार पूछा हुआ है. वंस अगेन दिस डेरिवेशन इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का डेरिवेशन नहीं है, बट ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन. तो अगर मुझे E1 के बारे में लिखना ना, E1 अगर आपको पता होगा ना व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लेन शीट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. हमने लास्ट डेरिवेशन वही किया है. समझ में आ रहा है क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है. तो मैं पहले वाले प्लेन शीट का क्या है, सिग्मा 1 है. आपको इसमें साइन नहीं लेना है. अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, साइन आपको ऑटोमेटिकली कवर होगा. कैसे कवर होगा, दैट वन विल सी. E1 is on which side, left hand side or right hand side? E1 is on which side? E1 vector is on right hand side. Region 1 का E1 vector is on right hand side. In region 1, E1 vector is on right hand side. So right hand side, so R unit cap is also on right hand side. So इसके लिए ये R unit cap आएगा, that will be positive. So we got value for E1 vector. ये equation number 1 है. Now we'll take for the charge this E2 in region 1. E2 in region 1 is what? If you are talking about the E2 is what? Sigma 2 आएगा बेटा, ये 2 upon epsilon naught आएगा. Sigma 2 upon epsilon naught. Sigma 2 upon epsilon naught. ये E2. But what is the direction? If we are taking direction, then again see. E2 is on which side? E2 is on left hand side. So E2 is on left hand side. That's why its unit vector will be negative. ठीक है, यहाँ पे E2 vector का हमने लिया. E2 vector को I'll write it again. So E2 vector is equal to minus sigma 2 upon 2 epsilon naught. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 में निकालना है तो ये वेक्टर है, वेक्टर ना. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 1 वेक्टर हमेशा ऐड होता है. वेक्टर इज ऑलवेज एडेड. ये क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर होगा प्लस क्या हो जाएगा, ये E2 वेक्टर हो जाएगा. ठीक है, इसको लेना आप इक्वेशन नंबर 3 ले लो. या देखो आपको ना अगर डायरेक्टली वैल्यूज पता है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में भी आ सकते थे, है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है उसको. ठीक है, विल इग्नोर दैट पर्टिकुलर पार्ट. अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने E1 वेक्टर का वैल्यू अगर मुझे लेना है तो रीजन 1 वेक्टर, E1 वेक्टर का वैल्यू क्या है बॉस? E1 वेक्टर का वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R यूनिट कैप माइनस E2 वेक्टर का वैल्यू रखेंगे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू R यूनिट कैप. ठीक है, तो E1 electric field in the first region is what? We will take common. What can we take common? 1 upon 2 epsilon naught हमने common ले लिया है. What is in the bracket? So sigma 1 is left minus sigma 2 left, correct? And R unit cap I'm keeping common on right hand side. So this is the formula for electric field on right hand side. But एक general question है इनके mind में. What is the general question that we'll see? ये बोले अगर sigma 1 sigma 2 का value 0 होगा, equal होगा, sigma 1 equal to sigma 2 and that equal to sigma. So what will be the electric field in region 1? So everyone understand, if sigma 1 is sigma, sigma 2 is also sigma. So sigma minus sigma is what? 0.
तो आउटसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। मतलब फर्स्ट प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, सेकंड प्लेट पे का पॉजिटिव चार्ज होगा, तो रीजन वन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इट्स लाइक अ मोबाइल बैटरी। पुराना मोबाइल का बैटरी होता था ना, पुराना मोबाइल बैटरी, ऐसे दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके बीच का अगर स्पेस हम लेते हैं तो चार्ज उसके स्पेस में होता है। चार्ज इज इन बिटवीन स्पेस, चार्ज विल बी इन बिटवीन स्पेस। मोबाइल बैटरी को बाहर से टच करोगे, आपको कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा, यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक शॉक, यू विल बी सेफ। Why will you be safe? Because there's no electric field outside. क्योंकि फर्स्ट प्लेट पे सिग्मा, सेकंड प्लेट पे सिग्मा सेम होगा, वन विल बी प्लस, वन विल बी माइनस। तो पहले पे माइनस सिग्मा है तो दूसरे पे प्लस सिग्मा है, और इट कैन बी रिवर्स ऑल्सो, फर्स्ट कैन बी प्लस एंड सेकंड कैन बी माइनस। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन वन। अभी हम लेंगे रीजन टू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन टू। ठीक है, इसके बाद ना हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी डाउट रहेगा तो पूछ लेना प्लीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं रीजन वन में लेता हूँ, किसके लिए, रीजन टू में इलेक्ट्रिक फील्ड वन लेता हूँ, तो यू कैन सी आई एम टेकिंग रीजन टू। As you all can see in the diagram, I am indicating in region 2 I am studying. In region 2 I am talking about the electric field 1. Electric field is 1 is on which side? Left hand side. So if I write now, sigma for the plate 1 is sigma 1, this is 2 epsilon naught. But electric field is on which side? Electric field is on left hand side. So if it is on left hand side, so R unit cap will be negative and E1 vector will be negative. So I will write E1 vector is equal to minus sigma 1 upon 2 epsilon naught into R unit cap. If I have to take, I will take it as what? Equation number 4 मैंने ले लिया. Now I have to take electric field 2. Electric field 2 क्या होगा? ये E2 वाला value, E2. E2 is also in same direction only. There's no change. So E2 electric field is what? Sigma 2 होगा इसमें. This is what? 2 epsilon naught. R unit cap इसका भी क्या होगा? Negative होगा. Correct? So अभी हम इसका values लिख लेते हैं. So therefore electric field 2 vector is equal to minus sigma 2 upon 2 epsilon naught into R unit cap. Why minus? Because R unit cap का minus will come over here. So ये आपका होगा इक्वेशन नंबर 5. तो हमको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2. तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 इज व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड 1 in region 2 plus electric field 2 in region 2 is what? Equation number 6. तो अभी हम क्या करेंगे? फोर्थ को पुट करेंगे, फिफ्थ को पुट करेंगे सिक्स में. सो लेट्स सी क्या मिलता है हमको. तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 1 क्या है? माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट कैप, माइनस sigma 2 upon 2 epsilon naught into R unit cap. Which quantity we can take common? 1 upon 2 epsilon naught we can take common. What is in the bracket? Minus sigma 1 and minus sigma 2. ये क्या है? R unit cap. ठीक है. अब अगर उसको और डिटेल में जाना है तो मैं माइनस यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ. 1 upon 2 epsilon naught. ये क्या होगा? sigma 1 plus sigma 2 and R unit cap. Negative means what? Electric field in the region 2 will be on left hand side. Negative का मतलब ये हो गया. Correct? And then we'll take the special case if sigma 1 sigma 2 equal, if sigma 1 sigma 2 equal, if sigma 1 equal to sigma 2 and equal to sigma, तो sigma 1 plus sigma 2 कितना होगा? sigma sigma 2 sigma. तो electric field in the region 2 is equal to minus 1 upon 2 epsilon naught. ये sigma plus sigma, that will be what? 2 sigma into R unit cap. तो 2 will get cancelled. So आपको फाइनली मिलेगा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट कैप. तो बेटा आप समझो ना, एक प्लेट के हाफ, वन साइड में हाफ वैल्यू है, दूसरे साइड में हाफ वैल्यू है, टोटल ऐड करेंगे तो वन वैल्यू होगा. तो पहले प्लेट पे अगर सिग्मा सेम है, सेकंड प्लेट पे सिग्मा सेम है, तो पहले प्लेट का हाफ दूसरी प्लेट का हाफ अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड करके हमको वन वैल्यू मिलेगा. तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. सो अभी ये हमारा रीजन 2 का हो गया. वी हैव टू फाइंड आउट फॉर द रीजन 3 आल्सो. विल सी. ठीक है. रीजन 3 का करेंगे ना तो देखो E1 का वैल्यू नेगेटिव होगा और E2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा. मैं ये थोड़ा सा ऐसा ऐसी जगह पे ले लो जहाँ पे डायग्राम मुझे थोड़ा दिखता रहे. तो मैं एक काम करता हूँ, वो नोट्स में ना प्रॉपर दिख नहीं रहा था तो मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. नोट्स में पता नहीं चला था कि कहाँ पे अगला लाइन है.
सो आई एम टेकिंग रीजन 3। अभी रीजन 3 मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर लेता हूँ इसमें। रीजन 3 में व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड 1, so electric field 1 reason 3, so I am just indicating this is the reason 3, fine. And where is the electric field 1? Electric field 1 is on left hand side, so I'll write electric field 1 in the reason 3 is sigma 1 upon 2 pi epsilon naught. R unit vector will be on left hand side, हाँ तो माइनस होगा, तो उस हिसाब से E1 वेक्टर का वैल्यू आपने को मिलेगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन, ये माइनस साइन पहले, इनटू आर यूनिट कैप। इसको अगर हमने लेना 6 इक्वेशन तक ऑलरेडी लिया तो ये 7th हो गया। नाउ विल सी नेक्स्ट वन, विल टेक E2 वेक्टर। E2 वेक्टर यहाँ है बॉस, ये E2 वेक्टर इट इज ऑन राइट हैंड साइड, बट कौन से सिग्मा की वजह से, 2 की वजह से ना, प्लेट 2, इट इज बिकॉज ऑफ प्लेट 2, हाँ ये प्लेट 2 वाला सिग्मा। सो E2 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट कैप, इसका पॉजिटिव होगा, ये होगा इक्वेशन नंबर 8। So now we are ready to find out electric field in region 3. So electric field in the region 3 vector is what? Is equal to electric field in the region 1. Electric field 1 vector plus electric field 2 vector. ये रीजन 3 के हिसाब से हमने ऑलरेडी 7th 8th में निकाला है, ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। अब पुट करेंगे 9th इक्वेशन में, we'll put their values in 9th इक्वेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द थर्ड रीजन इज इक्वल टू, ये क्या होगा बॉस? अच्छा मैं इसी डेरिवेशन, एक्चुअली मैं ना डेरिवेशन को 3 पार्ट में बदल देता हूँ मैं थोड़ी देर में, हाँ उसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स आपको तो मिलेगा ही, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वैसा। तो ये E3 का होगा, E1 का वैल्यू, E1 का वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट कैप। देन E2 का वैल्यू प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट कैप, ठीक है। ऐसे लाइन ड्रॉ करते हो, इससे समझ में आया कि हाँ हम लाइन को फ्लिप कर रहे हैं बार बार, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 रीजन में क्या हो गया, रीजन 3 में ध्यान से, ये क्या होगा, आपने इसमें ना 1/2 एप्सिलॉन नॉट को 1/2 एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, माइनस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आर यूनिट है, एक्चुअली देखा जाए टेक्निकली तो दिस द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 3, बट अभी होता है ना इफ व्हाट इफ सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, तो अगर ये दोनों वैल्यू सिग्मा सिग्मा होंगे तो माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा मिलकर कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 3 क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 0, ठीक है। सो ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे भी एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। अब इसी डेरिवेशन को मैं ना थोड़ा सा वाइंड अप ये कर दूंगा, थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मान लो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का अगर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये लास्ट वाला पार्ट भी थोड़ा सा कहाँ तक कॉपी हो गया, रीजन 2 तक का इलेक्ट्रिकल हमको मिल गया, हाँ ठीक है, रीजन 2 तक का इलेक्ट्रिकल भी आ गया, ठीक। आई नीड फॉर रीजन 3। देखो कितना मेहनत कर रहा हूँ मैं, फटाफट ना, अभी ये दूसरा डेरिवेशन मैंने कर दिया फटाफट, हाँ हाँ, तो दूसरा डेरिवेशन भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन में ना, मैं देखो क्वेश्चन में चेंज करके थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ, एंड व्हाट इज हैपनिंग दैट पॉइंट यू सी, क्वेश्चन में ना सिग्मा 1 को हम प्लस लेते हैं, सिग्मा 2 को माइनस ले लेते हैं। सिग्मा 1 को अगर आप प्लस ले लेते हो, सिग्मा 2 को माइनस लेते हो, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम में ये सिग्मा 1 प्लस हो गया है, सिग्मा 2 आपका माइनस हो गया, ठीक है। तो हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं इस डेरिवेशन के टर्म में अगर देखें तो, हाँ अभी ना ये हम डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, हाँ क्या बात है, देखो कितना ना फटाफट मैं कर रहा हूँ, हाँ। तो इतना टेंशन मत लो, बस खाली यहाँ पे डेरिवेशन समझ लो, राइट अप मैं ना भेज दूंगा इसका PDF।
हाँ, अभी ये सिग्मा वन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का अवे होगा। सिग्मा वन पॉजिटिव तो पॉजिटिव का अवे होगा, लेफ्ट में जाएगा। करेक्ट। सिग्मा वन पॉजिटिव है तो ये इवन सेकेंड रीजन में राइट जाएगा। सिग्मा वन पॉजिटिव है तो थर्ड रीजन में इवन राइट जाएगा। ठीक है। और अगर मैं यही सेकेंड रीजन के लिए लेता हूँ, ये सेकेंड प्लेट के लिए, सेकेंड प्लेट को अभी मैंने नेगेटिव ले लिया, तो सिग्मा टू नेगेटिव, तो थर्ड रीजन का टूवर्ड्स होगा। सेकेंड रीजन का भी टूवर्ड्स होगा तो मतलब राइट में होगा। फर्स्ट रीजन का भी टूवर्ड्स होगा तो राइट में होगा। ठीक है। अब मैं जब डेरिवेशन करूंगा ना, डेरिवेशन इवन नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव, देखो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, फॉर्मूले में ध्यान देना। E1 इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, E2 इज ऑन राइट हैंड साइड ना, तो ये पॉजिटिव होगा। मान लो आपने 2 बार लिख दिया है, क्या फर्क पड़ता है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ। अब यहाँ पे सिग्मा वन, अच्छा इसमें से ओहो, वैल्यू पता है क्या, थोड़ा सा चिटिंग हो गया, सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, लिख लेते हैं हम लोग। एज यू ऑल नो आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, सॉरी हार्डली वर्किंग। सो ये E1 का वैल्यू क्या है, माइनस, तो यहाँ पे नेगेटिव, ये 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा 2 का वैल्यू प्लस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अभी क्या हम कॉमन ले सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या है बॉस, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आर यूनिट कैप। और अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है ना, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1 विल बी व्हाट, 0। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है। अच्छा यहाँ फॉर्मूले में ये माइनस और ये प्लस होता। ठीक है, ये रीजन 1। रीजन 2 लेते तो क्या होता है, रीजन 2 में, रीजन 2 में इतना टेंशन, ये ना आर यूनिट का प्लस होता। ठीक है, क्या ये प्लस होता, क्योंकि E1 राइट साइड में है और E2 की तरह E2 इज ऑल्सो राइट हैंड साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 क्या होता है, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी प्लस, ये प्लस होता। तो यहाँ फाइनल आंसर में ये सब प्लस ही प्लस होते हैं। ठीक है, प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस होता है ऐसा, और फाइनली सॉल्व करके ये प्लस ही मिलता। मतलब लास्ट वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, वो पूरा ओवरऑल राइट में ही होता। तो यहाँ पे नेगेटिव की जगह हमको क्या मिलता, पॉजिटिव सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट मिलता। और अगर थर्ड रीजन के लिए करेंगे तो क्या होगा, थर्ड रीजन, थर्ड रीजन के लिए अगर कर रहे हैं तो यू कैन सी इन दिस वे। थर्ड रीजन के लिए E1 का वैल्यू क्या होगा, E1 का वैल्यू प्लस होगा, है ना, यहाँ माइनस है लेकिन प्लस होगा। ठीक है। और E2 का वैल्यू क्या होगा, वो माइनस होता, E2 का वैल्यू माइनस होता। तो ये E1 E2 क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब माइनस को मुझे इरेज करना पड़ेगा, ये सॉरी प्लस को इरेज करना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ, ये प्लस हो गया, पहला वैल्यू E1 प्लस होगा आपका, E2 आपका माइनस होगा, तो यहाँ पे सिग्मा ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। जब उनको इक्वेट करोगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। आपका पूरे का पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा, जहां पे सिग्मा 1 माइनस था वहां पे सिग्मा 2 माइनस हो जाएगा, जहां पे सिग्मा 2 माइनस था वहां पे सिग्मा 1, मतलब उल्टा रिवर्स हो जाएगा, समझ में आ रहेगा। जहां जहां पे प्लस साइन वहां माइनस आएगा, जहां जहां पे माइनस वहां पे प्लस आ जाएगा, दैट्स ओनली चेंज, अगर आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 की वैल्यू को चेंज करते हैं तो। इज दैट क्लियर। ठीक है। हाँ। ये मैं अभी लिखने का मौका दे रहा हूँ, लिखने का मौका क्या, देख लो आप एक बार। किसी को ऐसा लग रहा है क्या, शुड आई रिपीट इट अगेन, तो ऐसा किसी को लग रहा है मुझे रिपीट करना चाहिए बात। ठीक है। सो मैं अभी ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है ना, ये अब इसको फिर वापस से कॉपी करेंगे हम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में से मैं क्वेश्चन कॉपी करता हूँ, बाकी इतना वो नहीं है, नहीं तो फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको लगेगा नहीं नहीं ये फेयर गेम नहीं है, चीटिंग हो रहा है हर बार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों पॉजिटिव है। अच्छा ये जो अभी हम लोग अभी जो प्लेट बनाएंगे, अच्छा जो हमने प्लस माइनस लेना है अपना मोबाइल बैटरी है, मोबाइल बैटरी इज दिस, प्लस माइनस द मोबाइल बैटरी। और अभी जो हम नया जो डिस्कस करेंगे ना, वो बेटा आपको ना, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल लिया था क्लासरूम में ना, प्रिजन वाला, कि फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है कि जब भी ना कोई प्रिजनर को रखते हैं तो दे मेक श्योर कि बाहर से कोई भी बंदा उसको टच ना करने पाए, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगना चाहिए, और अंदर से कोई भी बंदा एकदम सेफ होना चाहिए। ठीक है, सो इट इज बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट। So according to this, derive an expression for electric field due to parallel plates containing surface charge density plus sigma 1
and plus sigma 2. But again I will take two different colors just to understand कि ना हम कलर चेंज करने से कोई फर्क नहीं है, फर्क पड़ता है टाइप ऑफ चार्ज से। ठीक है, ये हमने ग्रीन ले लिया, ये आपका प्लस है चार्ज। ठीक है, फिर हम रेड से इंडिकेट करते हैं, उसका भी चार्ज प्लस है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना जैसे प्रो प्लेयर की तरह चलेंगे। हाँ, हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ना अब अपने को सब आता है। हाँ, आपको नहीं, भगवान है वैसे फीलिंग के साथ में भी आगे बढ़ना है। ठीक है, आप रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करोगे। रीजन वन टू इंडिकेट कर देता हूँ मैं, ये रीजन वन है हमारा, ये इन बिटवीन प्लेट्स रीजन टू है, एंड आउटसाइड दी प्लेट ये रीजन थ्री है। ठीक है, सो ये रीजन वन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने, रीजन टू में इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने, रीजन थ्री में इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हमने। ओके, गुड। अब अगर इसका मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो मैं ऐसे अभी इंडिकेट करता हूँ, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, ये मेरा E1 वेक्टर लेफ्ट में होगा, रीजन टू में E1 वेक्टर राइट, E1 वेक्टर राइट में होगा, रीजन थ्री में E1 वेक्टर राइट में होगा। So I want to know that is there anybody who is having doubt in understanding how come we are taking E1 vector in reason 1, reason 2, reason 3? How are we getting these directions? इसमें किसी को डाउट है? ओके, ऐसा मैं मान के चला किसी को डाउट नहीं है। वैसे तो मुझे इस बात में डाउट है। ठीक है, अभी रीजन टू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, तो ये रीजन टू का अवे होगा बिकॉज पॉजिटिव चार्ज, तो E2 वेक्टर रीजन थ्री में राइट होगा। अभी E2 वेक्टर रीजन टू में क्या होगा, वो लेफ्ट होगा। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन टू क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ प्लेट टू इन रीजन वन में क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, क्योंकि अवे, अच्छा ये किसका वैल्यू है, ग्रीन वाला जो है इसका वैल्यू है प्लस सिग्मा वन, और ये रेड वाले का वैल्यू है प्लस सिग्मा टू। ठीक है, अब हम ले रहे हैं रीजन वन रीजन टू। अब माइनस के साइन के लिए ना मैं बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना, हम डायरेक्टली लिखेंगे, ऐसा मान के चलो कि अब हम लोग बहुत स्मार्ट हो गए। हाँ, तो आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। तो E1 ले लिया हमने, E1 वेक्टर फॉर्म है, डायरेक्टली वेक्टर फॉर्म है, ये सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन हो, ये आर यूनिट कैप है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट में है, बट आर यूनिट कैप किधर है, राइट में होना चाहिए, तो हमने इसको डायरेक्टली माइनस साइन ले लिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर वन। नाउ आई विल टेक इलेक्ट्रिक फील्ड टू वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड टू वेक्टर E2 वेक्टर का वैल्यू राइट में है, दिख रहा है ना, अच्छा लेफ्ट में माय मिस्टेक, तो माइनस होगा क्योंकि लेफ्ट में, सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट फाइन इनटू क्या है, आर यूनिट का, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर टू। और हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड वन वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वन वेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर थ्री हो गया। अब हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो अब यहाँ पे आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ना आउटसाइड एग्जिस्ट होता है, वो जीरो नहीं होता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। तो ये वैल्यू हो गया आपका माइनस सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट कैप, E2 का वैल्यू क्या है, माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या है, आर यूनिट कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन वन इज व्हाट, आपने वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में क्या है, माइनस सिग्मा वन है, माइनस सिग्मा टू है, और ये आर यूनिट कैप है। ठीक है, अभी क्या हो गया, हमने ले लिया है E1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट है, ये ब्रैकेट में वैल्यूज, आप माइनस अगर बाहर ले लेते हो, माइनस बाहर ले लेते हो, तो ब्रैकेट वाला वैल्यूज क्या होगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इंटू आर यूनिट कैप, ये एक्चुअल फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, करेक्ट, इन लेफ्ट। तो अभी आप देखो ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में एक्ट कर रहा है, बट अभी हमको क्या करना है, अगर हमने मान लिया कि इफ सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इज इक्वल टू सिग्मा, तो अगर इक्वल ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन वन है ना वेक्टर, आपके पास माइनस ऑलरेडी है, माइनस वन अपॉन टू टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू का वैल्यू सिग्मा प्लस सिग्मा होगा,
तो मिलके कितना हो जाएगा, वो हो गया 2 सिग्मा इंटू आर यूनिट कैप। तो ये 2 कैंसिल करेंगे। तो अभी आपको ये पॉइंट देखना है इसमें कि ये आपको बता रहा है कि सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, मतलब ये ऐड होगा, है ना, कैंसिल होकर जीरो नहीं होगा। बट नेगेटिव साइन का मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में होगा। इसका मतलब है कि कोई बंदा ना रीजन 1 में खड़ा होगा, उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। मतलब अगर ये कोई प्रिजन टाइप बनाया है, एक प्लेट यहाँ पे एक प्लेट यहाँ पे, तो प्रिजन के बाहर से कोई टच करता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। अभी हम रीजन 2 ले लेते हैं। रीजन 2 में क्या है, रीजन 2 में वो प्रिजनर होगा जिसको अंदर हम रख रहे हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, हमको वो भी देखना है ना। वी आर कीपिंग द प्रिजनर इनसाइड, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। E1 वेक्टर आपका प्लस होगा। अगर मैंने E1 वेक्टर लिया है तो उसका सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आर यूनिट क्या होगा, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। E2 वेक्टर क्या होगा बॉस, E2 वेक्टर लेफ्ट में है तो वो नेगेटिव होगा, तो माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा आर यूनिट क्या, ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 5। ठीक है। अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन 2 में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन 2 में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वेक्टर प्लस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का वेक्टर का वैल्यू क्या है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट का माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट का। कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये मैं डायरेक्टली चले जा रहा हूँ बिकॉज वी नो ये डेरिवेशन हम थर्ड टाइम रिपीट कर रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। सिमिलर काइंड्स ऑफ पैटर्न है तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2 हमको मिल गया ये। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2। अभी हम लेंगे इफ व्हाट, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 होगा तो क्या होगा, ये सिग्मा माइनस सिग्मा जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। सो अगर मान लो प्लेट 1 एंड प्लेट 2 पे सेम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम चार्ज है, प्लेट 1 प्लेट 2 पे सेम चार्ज है या सेम चार्ज डेंसिटी है, तो इन बिटवीन प्लेट्स अगर कोई बंदा होगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं होगा, विल नॉट एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सेफ होगा। तो जब भी क्यूबिकल बॉक्स टाइप का बना होता है ना, कभी प्रिजनर को रखते हैं तो प्रिजनर को बाहर से कोई अगर टच करेगा उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, बट प्रिजनर जब भी अंदर होता है बॉक्स के उसको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सेकेंड रीजन में अब हम ले लेते हैं रीजन 3। तो रीजन 3 इज अगेन वेरी सिंपल। रीजन 3 अगेन बाहर से है, यहां से भी ना कोई प्रिजनर को बचाना नहीं चाहिए। ठीक है, ये इनका मेन मोटो है। तो कोई बचा नहीं पाया प्रिजनर को, इसके लिए क्या करते हैं, लो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अगर मैंने लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वेक्टर, ये राइट में है तो सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, वही वो भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि राइट साइड में है इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आल्सो। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट का। व्हाट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 3, electric field in the region 3 is what, electric field 1 vector plus electric field 2 vector. So electric field in the region 3 vector is equal to E1 का value sigma 1 upon 2 epsilon naught into R unit cap plus sigma 2 into 2 epsilon naught R unit cap. तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 3 क्या हो जाएगा बॉस, आप 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को आपने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या हो गया, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इनटू क्या हो गया, आर यूनिट कैप। बात समझ आ गया। हाँ, अभी इसमें इश्यूज क्या है इसके हिसाब से, if sigma 1 sigma 2 equal, if sigma 1 equal to sigma 2 equal to sigma। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 3 क्या हो जाएगा, आपके पास 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, अगर सिग्मा सिग्मा होगा तो वो 2 सिग्मा होगा इनटू आर यूनिट कैप, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर यूनिट कैप मिलेगा। इट इज इक्विवेलेंट टू द रीजन 1, रीजन 1 के इक्वल होगा, बट क्या डिफरेंस है, रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में होगा, रीजन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा, और रीजन 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 इक्वल है तो। ओके, अच्छा अभी कोई है जिसको इसमें डाउट है, एनीबडी वांट टू आस्क एनी डाउट, किसी को ऐसा लग रहा है कोई डाउट है, वांट टू गेट एनी क्लैरिफिकेशन। ठीक है, चलेगा, तो अगर आपका इतना हो जाएगा तो प्लीज डू राइट एंड आफ्टर दैट यू ऑल कैन लीव, थैंक यू वेरी मच एंड tomorrow we will have class at 1, thank you very much।